میں اس حکیم پروفیسر عبدالحکیم بلتراتی کے فرزند کثیر ہدایت خطیب ولایت علامہ قماری یاسر بلتراتی سے ملتمس ہو کہ وہ آج کی مجلس عزا سے خطاب فرمائیں، اور جو مبنی عزادار فرش عزا سے دور ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ صلوات پچھلے سال اسی مقام پر میں نے آج ہی 5 سفر کو آپ سے پہلی دفعہ گفتگو کی تھی، اور آج اسی مقام پر یہ میرا دوسرا سال ہے۔ اس سال مجھے 4 روز پڑھنا ہے، آج 5 سے لے کے 8 تک۔ بھائی نے 9 کے لیے بھی کہا تھا، لیکن 9 کو میں مل نہیں جا رہا تو اس لیے میں معذرت کی۔ بہرحال 4 دن آپ سے گفتگو رہے گی۔ کوشش کروں گا کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ مواد دے سکوں اور زیادہ سے زیادہ آپ کے قریب آ کر آپ سے بات کر سکوں۔ جو آیت میں نے 4 روز کے لیے عنوان میں تلاوت کی ہے، اگر یہ آیت ہی میں ان نوجوان بچوں کو سمجھا سکا تو میں سمجھوں گا میرا آنا یہاں سفل ہو گیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں کیونکہ قبلہ آج کل جو جھگڑے چل رہے ہیں، جو اختلافات چل رہے ہیں، تو ان نوجوانوں کی تربیت کرنا بڑا لازمی ہو گیا ہے۔ تو اسی لیے ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور منیر بھائی نے بھی جس موضوع کی فرمائش کی ہے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ آیت میں نے عنوان میں رکھی ہے۔ مجمع بھلے ہی کم ہے، آہستہ آہستہ لوگ بھی آ رہے ہیں، انشاءاللہ کل سے پرسوں سے اور زیادہ مجمع بڑھے گا، گفتگو بھی بڑھے گی۔ آپ اس کی ٹینشن نہ لیں، آپ صرف توجہ میری طرف کریں اور مجھ سے بات کرتے ہیں تاکہ مجھے اطمینان ہو کہ بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ سورۃ انعام کی آیت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، جملہ میں پہلا کہنے جا رہا ہوں، اسی میں مجھے اندازہ ہوگا کہ مجھے کتنی دیر بات کرنی چاہیے۔ میں نے پہلے بھی کہا، ابھی 1 ہفتہ پہلے میں نے گجرات میں پڑھا، میں نے ہر جگہ پہ کہتا ہوں میرے بھائی میں گھڑی دیکھ کے نہیں پڑھتا، صرف آپ مجھ سے بات کریں تاکہ اطمینان ہو کہ آپ نہ تھکیں، میری تھکاوٹ کو آپ چھوڑ دیں، آپ بات کرتے ہیں۔ ارشاد ہو رہا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ۔ اللہ کہہ رہا ہے میرا میں توجہ چاہوں گا، چلتے بیٹھو، میرا وَأَنَّ هَذَا کہیں اللہ اشارہ کر رہا ہے، سمجھ میں نہیں بات؟ یہ کراچی ہے، ساری زندگی علماء کو سنا ہے، اگر مجھے یہاں پہ بھی اتنی قبلہ تشریح کرنی پڑے تو پھر میرے آنے کا فائدہ کیا؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ۔ اللہ کہہ رہا ہے میرا ایک ہی سیدھا راستہ ہے۔ میرا ایک، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں،
मेरा एक ही सीधा रास्ता है, तेरा नहीं। तवज्जो चाह रहा हूं नौजवानों, आज पहली गुफ्तगू है। अल्लाह कह रहा है मेरा एक ही सीधा रास्ता है, उसकी पैरवी करो। तवज्जो, समझाना मेरी ड्यूटी है, बोलना आपकी ड्यूटी है। क्या अल्लाह कह रहा है मेरा, मेरा, तुम्हारा नहीं। मैंने कहा बेटा समझाना मेरी ड्यूटी है, बोलना आपकी ड्यूटी है। अल्लाह कह रहा है मेरा, मेरा एक ही सीधा रास्ता है, उसकी पैरवी करो, उसकी। या अल्लाह, रास्ते की पैरवी। ये मयार है कराची का, ये मयार है कराची का। मैंने कहा या अल्लाह, रास्ते की पैरवी। मैं अब देखो, मैं जुमला कह रहा हूं अली के मलंगों के लिए। मैंने पिछले साल भी कहा था कि इस मिंबर पे, मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है कि इस मिंबर पे सारी जिंदगी एक मलंग ने से मैं उस शख्स की पैरों की धूल के बराबर नहीं रही, लेकिन मैं तवज्जो चाह रहा हूं। क्या मैं कह रहा हूं, जिस मिंबर पे सारी जिंदगी ज़मीन तक साफ पढ़ते रहे, उस मिंबर से कोई हल्की बात तो होनी ही चाहिए। क्या अल्लाह कह रहा है मेरा, मेरा, तुम्हारा नहीं, मेरा एक ही रास्ता है, उसकी पैरवी करो, उसकी। यादा रास्ते की पैरवी। इत्तबा की जाती है फैल में, इताअत की जाती है कौल में। पता चला ये अल्लाह का जो रास्ता है, ये चलता भी है, बोलता भी है। मैं कुछ कहना चाहता हूं, मैं कुछ कहना चाहता हूं। पता चला लेंगे हैदरी, पता चला ये जो अल्लाह का रास्ता है, ये बोलता भी है, चलता भी है। वला तत्तबिउस सुबला, और अल्लाह ने ना बहुत से रास्तों की पैरवी मत करो। मौजूद क्या है मुझे भाई, पढ़ना मेरा काम है, बोलना तुम्हारा काम है। क्या बहुत से रास्तों की पैरवी मत करो, बहुत से रास्तों की पैरवी मत करो। क्यों? फतफर्रक़ बिकुम अन सबीले। अल्लाह का याद रखना, अगर तुमने बहुत से रास्तों की पैरवी की तो वो तुम्हें मेरे रास्ते से जुदा करेगा। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, बहुत से रास्तों की पैरवी की तो वो तुम्हें मेरे रास्ते से जुदा कर देगा, हटा देगा। अब तवज्जो चाह रहा हूं, पता चला रास्ता एक है, मजहब एक है, शरीयत एक है। अगर ये आयत आज इब्तिदा में ना पढ़ूंगा तो हो सकता है कि जो मौजूद पढ़ूंगा वो आपको समझ भी ना आए। अल्लाह कह रहा है सूरत शूरा में, अम लहुम शुरकाउ शरअउ लहुम मिनद दीन। अल्लाह कह रहा है मुझे बताओ, मुझे, क्या तुम्हारे, मेरे नहीं, क्या तुम्हारे बनाए हुए शरीकों ने दीन में नए नए रास्ते बनाए हैं? अभी समझ में नहीं आई बात। क्या कह रहा है अल्लाह
लहुम मिनद्दीन, अल्लाह कह रहे हैं क्या तुम्हारे बनाए, अल्लाह कह रहे हैं मेरा रास्ता एक है। खुदा की कसम मैं अगर मौजूदी समझा सका तो काफी। अल्लाह कह रहे हैं मेरा रास्ता एक है, लेकिन तुम्हारे बनाए हुए शरीकों ने दीन में नए नए रास्ते बनाए हैं, नए नए रास्ते बनाए हैं। अब उनके बिना जब कुरान नाम नहीं ले रहा तो अब्दुल हकीम का बेटा क्यों ले, लेकिन कम से कम इतना तो कुरान ने बताया कि कुछ है जिन्होंने दीन में नए नए रास्ते बनाए हैं। पता चला जिन्होंने दीन में नए नए रास्ते बनाए वो अल्लाह की नजर में काफिर भी है, मुशरिक भी है। तवज्जो जा रहा हूं, वो अल्लाह की नजर में काफिर भी है, मुशरिक भी है। मेरे नौजवान भाई, रास्ता एक, मजहब एक, रास्ता है ये। अल्लाह का बहुत से रास्तों की पैरवी मत करो, मत करो। अगर तुमने बहुत से रास्तों की पैरवी की तो वो तुम्हें मेरे रास्ते से हटा देंगे, जुदा कर देंगे। पता चला सिराते मुस्तकीम एक, रास्ता एक। मैंने जो 4 दिन जो मौजूद से पढ़ा है ये मौजूद जहन में रखना। इस साल मैंने अपनी 4 तकालीम का यहाँ मौजूद रखा है रास्ता। ये अल्लाह का रास्ता वो रास्ता है जो चलता भी है, बोलता भी है, क्योंकि अल्लाह कह रहे हैं मेरे रास्ते की पैरवी करो, पैरवी करो, पैरवी करो। और अल्लाह कह रहे हैं क्या तुम्हारे बनाए हुए शरीकों ने दीन में नए नए रास्ते बनाए हैं, नए नए रास्ते। अब बिना कुरान कह रहा है तो कुछ होंगे जिन्होंने दीन में नए नए रास्ते बनाए, नए नए। और अल्लाह ने कहा जिन्होंने मेरे दीन में नए नए रास्ते बनाए वो मेरी नजर में काफिर भी है, मुशरिक भी है। अब मैंने कहा रास्ता एक, मजहब एक। अब मैं चलता हूं कुरान की तरफ। इरशाद हो रहा है सूरत आले इमरान में, वअतसमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। अभी नहीं बोले, अल्लाह की रस्सी को, रस्सियों को नहीं। जाके कराची का मसला है, नहीं मेरे भाई, हम जिक्र में बोल बैठते हैं, बोलते भी है क्या? अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, रस्सी को, रस्सियों को नहीं। पता चला रास्ता भी एक, रस्सी भी एक। और अल्लाह ने कहा फिरके फिरके मत हो जाओ, फिरके फिरके मत हो जाओ, मत हो जाओ। मेरी रस्सी को, ये जो नौजवान बैठो तवज्जो जा रहा हूं, अल्लाह कह रहे हैं मेरी रस्सी को मजबूती से पकड़ो, मजबूती से, मजबूती से। अब मुझे बताओ क्या अल्लाह ने आसमान से कोई रस्सी लेकर की है? मैं तवज्जो जा रहा हूं, तवज्जो जा रहा हूं। अल्लाह ने आसमान से कोई रस्सी लेकर की है? लेकिन भागो, भागो, रस्सी को पकड़ो। तो आखिरकार ये रस्सी है कौन?
देखो, तफसीर साकी में देखो कि जब इमाम से पूछा गया मौला ये रस्सी क्या है जिसको मजबूती से पकड़े, तो कहा नहनु अब्दुल्लाह, हम 14 अल्लाह की रस्सी है। अल्लाह कह मेरा एक ही रास्ता है, एक सिराते मुस्तकीम, एक मेरे बाबा कहा करते थे कि तुम मौजूद से हटे, वो हकीकत नहीं। मैं तुम्हारी चुप देकर, क्योंकि मैं आज पहला दिन है इसीलिए मैं आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हूँ, नहीं तो मैं इतनी डिटेल में बात करने का आगे नहीं, मैं सिर्फ नुक्ता देता हूँ, बात आगे करता हूँ। लेकिन आज पहला दिन है, मैं समझाने के लिए मैं बड़े आराम से बात को आगे लेके जा रहा हूँ। चलता हूँ कुरान की तरफ। इरशाद हो रहा है सूरत नहल में, हल यस्तवी हुआ, मौजूद मेरा ज़हन में रास्ता, अल्लाह कह रहे हैं मेरा एक ही रास्ता है, सिराते मुस्तकीम एक है। अब सूरत नहल में इरशाद हुआ हल यस्तवी हुआ, वो उसके बराबर है, तवज्जो, वो उसके बराबर है। किसके बराबर? जानना किसके बराबर? तू कह रहा है हल यस्तवी हुआ, वो उसके बराबर है, किसके बराबर? वमन यामुर बिल अदल, जो साहिब अदल है, वहुवा अला सिरातिल मुस्तकीम, और सिरातिल मुस्तकीम पर है, था नहीं, सिरातिल मुस्तकीम पर है। अब नौजवानों मेरे पास तो हवाला है, मुसलमानों के सर पे कुरान रख के पूछो, उनसे बोलो अपनी किताबों में तुम इस आयत की तफसीर दिखाओ, ना मिले तो मुझसे पूछो। अब मुसलमानों के सर पे कुरान रख के पूछो कि जब ये आयत नाज़िल हुई, मैंने कहा आज 10 मिनट के बाद अगर अब अली की मोहब्बत की मस्ती में सारा मजमा ना बोले तो मैं समझूंगा या तो मेरी कमी नहीं है या आप थके हुए हैं। या जब ये आयत नाज़िल हुई तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद खड़े हो गए, दरबार भरा है, अब्दुल्लाह इब्न मसूद खड़े हो गए और कहा या रसूल अल्लाह वो कौन है
यानी रसूल ने कुरान की आयत पढ़कर सहाबा को बता दिया कि अली के बराबर कोई नहीं। रसूल का कायनात में कोई नहीं जो अली के बराबर हो, बराबर हो। अभी मैंने तकरीर मेरे बच्चे शुरू ही नहीं, बराबर हो, पता चला अली के बराबर कोई नहीं। तो आप तो अब्दुल हकीम का बेटा डंके की चोट पे जुमला कहेगा, जब अली के बराबर कोई नहीं तो अली की विलायत के मुकाबले में किसी और की विलायत कहां से आ गई? अभी 3 रोज और है, तवज्जो कर रहा हूं, तवज्जो। अब यही सबब है कि मेरे मौला अली का कलाम है, तवज्जो, कलाम है। और कायनात से मेरा मौला मुखातिब हो गया है, मुखातिब हो काला अली अलैहिस्सलाम अलैकुम बेताब मल्ला तो जरूना बेजिहादत। कायनात से मेरा मुर्शिद अली मुखातिब हो गया है, तुम पर इताअत वाजिब है, मुस्तहिक नहीं। मुनीर भाई, मेरा मिजाज जिसने अब्दुल हकीम सुना है वो मैं बता रहा हूं कि मेरे साथ साथ चले। तुम पर इताअत वाजिब है, मुस्तहिक नहीं, वाजिब है। यानी किनकी वाजिब है ये तो बता। मेरे मौला अली ने उनकी जिनके नावाकिफ रहने की भी माफी नहीं। यानी एक लम्हे के लिए नावाकिफ रहा तो वो काफिर है। और यही सबब है, अपनी किताब का हवाला दूंगा, पहले शिया है, मुसलमानों की बड़ी किताब कंजुल आमाल जो 19 जिल्दों पर मुश्तमिल है, उसमें पूरा चैप्टर है इमामत पर। उसमें भी रसूल के जुमले मौजूद है, मम्मा वलम यारिफ इमामे ज़माना माता मीता तन चाहिया। रसूल ने फरमाया जो मर गया बगैर मार्फत इमामे ज़माना के, जो मर गया बगैर मार्फत इमामे ज़माना के, उसकी मौत जहालत कुफ्र पर है। मर गया बगैर मार्फत इमाम के, भले सारी जिंदगी कलमा पड़ा, मौत कुफ्र पे है। अब मैं बात छेड़ने पे मजबूर हूं, तुम्हारी घबराहट देखे अभी भी तुम मेरे साथ नहीं हुए जैसे तो होना चाहिए था। इमाम फखरुद्दीन राज़ी बहुत बड़ा नाम है, ठीक है, कई हमारे उलमाओं ने कोट किया, उनके हवाले पढ़े। उनसे किसी ने पूछा किबला के निजाम कैसे चलता है? इसे पूछा इमाम फखरुद्दीन राज़ी से, किबला के निजाम कैसे चलता है? कहा निजाम चलता है हुज्जत की वजह से। हुज्जत की वजह से
کہا الحجت من یقوم بذاتہ، حجت اسے کہتے ہیں جو اپنی ذات میں قائم ہو۔ میں اللہ کی حجت کی بات کر رہا ہوں، حجت الاسلام والمسلمین کی نہیں۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، لوگ سمجھ رہے ہیں پتہ نہیں کس کی بات کر رہا ہوں، میں اللہ کی حجت کی بات کر رہا ہوں۔ کیا الحجت من یقوم بذاتہ، حجت اسے کہتے ہیں جو اپنی ذات میں قائم ہو، وَيَقُومُ الْخَلْقُ عَلَى وَجْهِهِ، اور باقی تمام مخلوقات اس کی وجہ سے قائم ہے، وہ مخلوق کی وجہ سے نہیں۔ او کراچی والوں میں کہاں جاؤں، وہ مخلوق کی وجہ سے نہیں، مخلوق اس کی وجہ سے قائم ہو۔ پتا چلا آج جو یہ مخلوق قائم ہے تو ماننا پڑے گا کہ کوئی قائم بھی موجود ہے۔ میرے حیدری پتا چلا آج جو یہ مخلوق قائم ہے تو ماننا پڑے گا کہ اللہ کی کوئی حجت بھی ہے۔ کوئی زمانہ، کوئی دور حجت کے بغیر نہیں۔ جو موضوع میں پڑھنے جا رہا ہوں چاہتے ہیں میرا مولا ہے، میں تمہارے ذہنوں تک پہنچ سکوں جو پیغام مجھے دینا ہے۔ آؤ اب میں چلتا ہوں قرآن حکیم کی طرف۔ میں بات کھل کے کروں گا تم سے، کھل کے، کوئی گھبراہٹ نہیں۔ تمہیں کوئی گھبراہٹ ہے تو مجھ سے آ کے پوچھو، سوال کرو، میں ڈرتا نہیں ہوں کسی سے، اور نہ ہی میں کوئی غصہ کروں گا۔ یہ آپ مجھ سے کچھ سوال کریں کہ میری ڈیوٹی ہے، کوئی اس میں کوئی شدت نہیں، کوئی بات نہیں، میں آپ کا اپنا ہوں، پرایا نہیں۔ اور ویسے بھی ٹھاکے بہت اس ٹائم عام کھاوا ہو، توجہ، ٹھاکے بہت اس ٹائم عام کھاوا ہو۔ ہم جن کو مانتے ہیں ہمیں کیا بھاگنے کی ضرورت ہے بھائی؟ نہیں، اسی لیے نوجوان کو اپنے ذہنوں سے گھبراہٹ سے نکال دو۔ توجہ چاہو، علی کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں۔ آؤ اب میں چلتا ہوں قرآن کی طرف۔ بنص قرآن میں نے کہا راستہ ایک، مذہب ایک، شریعت ایک۔ اللہ کہے بہت سے راستوں کی پیروی مت کرو، اگر بہت سے راستوں کی پیروی کی تو وہ تمہیں میرے راستے سے جدا کر دے گا۔ اب آؤ میں چلتا ہوں قرآن کی طرف، دو آیتیں پڑھوں گا، پڑھ کے تمہیں دعوت فکر دے رہا ہوں، رات جا کر سوچنا کہ عمار یاسین نے کیا کہا، اور کل اپنا ذہن تیار کر کے آنا تاکہ کل گفتگو اور آگے بڑھے۔ موضوع نے بھی بتایا، قرآن نے بھی بتایا۔ بنص قرآن امام کی دو قسم، تیسری نہیں، دو قسمیں ہیں امام کی۔ تیسری قسم نہ قرآن نے بتائی، نہ اللہ نے بتائی، نہ موصوف نے بتائی۔ دو قسمیں قرآن نے بتائی، اللہ نے امام کی۔ اب چلتا ہوں قرآن کی طرف، ارشاد ہو رہا ہے سورۃ انبیاء میں، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا۔ اللہ کہہ رہا ہے امام ہم بناتے ہیں۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، میں نے اپنی زندگی میں بچوں بڑی دعوتیں دی ہیں، بڑے میں نے نعرے لگوائے ہیں، توجہ چاہ رہا ہوں، تم سب میری بات سمجھو گے، بولو گے خود ہی۔ کیا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا۔ اللہ کہہ رہے امام ہم بناتے ہیں، ہم۔ پتہ
इंसान को हक नहीं कि अपना इमाम खुद बनाए। अल्लाह कह रहे इमाम हम बनाते हैं, इमाम हम मुंतखब करते हैं। इनको उनको जो हमारे अमल से हिदायत करते हैं और करते रहेंगे। अब अल्लाह के इमाम की निशानियां वअौहैना इलैहिम फ़िअल खैरात व इक़ामस सलात व इताअत ज़कात। और अल्लाह कह रहा है मेरे बनाए हुए इमाम का हर फेर वही, उसका नमाज पढ़ना वही, उसका ज़कात देना वही, उसका खैरात देना वही। जो अल्लाह का बनाया हुआ इमाम है, मैं तवज्जो जा रहा हूँ, उसका नमाज पढ़ना वही, ज़कात देना वही, खैरात देना वही। तवज्जो, अल्लाह कह रहा है मेरे बनाए हुए इमाम की निशानी है कि वो अगर नमाज भी पढ़े तो वही है, ज़कात भी दे तो वही है, खैरात भी दे तो वही है। तो अब अगर अली हालत रुकू में ज़कात दे तो एतराज ना करना, ये वही है, ये वही है। और अल्लाह ने कहा फकान गना आबदी, और वो जब से है तब से मेरे अब हमारे अब अगर बात को ना खोला तो इन नौजवानों की घबराहट कभी भी दूर नहीं होगी कि बिना एक शख्स आया, अब मैं तशरीह नहीं करूंगा, अब बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। एक शख्स आया इमाम के पास, आया बैठा, इमाम ने कहा तुम्हारा नाम क्या है? कहा अब्दुल्ला। इमाम ने कहा तुम्हें अब की माने आती है? मैंने कहा मैं तशरीह नहीं करूंगा, अब मैं जल्दी जल्दी चलूंगा। क्या? इमाम ने कहा फखर भाई अब की माने आती है? कहा मौला को ही नौकर नौकर नौकर। इमाम ने कहा खामोश, अभी तक मुझे दीन की मार्फत ही नहीं। हम 14 अल्लाह के अब्द हैं, बाकी पूरी कायनात हमारी अब्द है।
मौसूम ने कहा हम 14 अल्लाह के अब्द हैं, बाकी तमाम कायनात हमारी अब्द है, हमारी। अब पता चला कि अल्लाह का बनाया हुआ इमाम है, उसका हर फेर वही है, नमाज पढ़ना वही, ज़कात देना वही, खैरात देना वही। अब ये तो हो गया, चलो इमाम की पहली किस्म। दूसरी किस्म कौन सी इमाम की, वो भी तो पता चले। आपको तो कोई क्यों ना मजा होता है, ये तो अल्लाह ने इमाम की पहली किस्म बताई कि मेरा बनाया हुआ इमाम तो है जिसका हर फेर वही, ज़कात देना वही, खैरात देना वही। अब पता तो है कि दूसरा इमाम जो है उसकी निशानी क्या है, तो वो अल्लाह ने बताया सूरत क़सस में, इरशाद हो रहा है सूरत क़सस में। अब तवज्जो चाहूंगा जब बोल पड़े हो, अल्लाह ने कहा वजअलनाहुम आइम्मतन यदूना इलन नार, अल्लाह ने कहा हमने साबित किया उनको इमाम जो इंसानों को बुलाते हैं जहन्नुम की तरफ। अगर ये जुमला कराची में भी ना समझ सको तो शायद मुझे पिंडी जाके पढ़ना चाहिए था, अगर यहाँ कराची में ना समझा है। क्या अल्लाह कह रहा है कुछ ऐसी इमाम है, कुछ अगर ये कुछ समझ लेना तो सारे बोल दे। अल्लाह कह कुछ ऐसी इमाम है जो इंसानों को बुलाते हैं जहन्नुम की तरफ। वयौमल क़यामत ला युनसरून, और अल्लाह ने कहा क़यामत में उनकी कोई मदद नहीं की जाएगी। मैं अब आयत पढ़ूंगा और तुम्हारे चेहरे देखूंगा कि अब कौन सोच के बात करता है और कौन बिला साख्ता बोलता है। क्या वयौमल क़यामत ला युनसरून, अल्लाह ने कहा उनकी क़यामत में कोई मदद नहीं की जाएगी, कोई मदद नहीं की जाएगी। कोई कौन, जो जहन्नुमी इमाम होंगे, जो जहन्नुमी इमाम होंगे, अभी भी समझ में नहीं आया, जो जहन्नुमी इमाम होंगे जो इंसानों को बुलाते हैं जहन्नुम की तरफ। अल्लाह कह रहे क़यामत में उनकी कोई मदद नहीं की जाएगी, कोई मदद नहीं की जाएगी। अल्लाह ने यहाँ तक भी बात को छोड़ा होता तो अभी भी किसी को मौका था बात करने का, लेकिन अल्लाह ने आयत में आगे कहा क्या, तवज्जो, वजअलनाहुम आइम्मतन यदूना इलन नार, अल्लाह ने कहा कुछ ऐसे इमाम हैं जो इंसानों को बुलाते हैं जहन्नुम की तरफ। वयौमल क़यामत ला युनसरून, और उनकी कोई मदद नहीं की जाएगी, उनकी कोई मदद नहीं की जाएगी। वअतबाअनहुम फी हाज़िहि दुनिया लानतन, और अल्लाह कहता है मैंने इस दुनिया में उनके पीछे लानत लगा दी है, लानत की नहीं, लानत लगा दी है। अब जहां भी जाएंगे लानत पीछे पीछे जाएगी। मेरे है वली जहां भी जाएंगे पीछे पीछे जाएगी। अल्लाह ने कहा वअतबाअनहुम फी हाज़िहि दुनिया लानतन, मैंने इस दुनिया में उनके पीछे आगे नहीं, लानत पीछे पीछे जाएगी। अल्लाह कह रहा है मैंने लगा दी। और अल्लाह ने कुरान में कहा सूरत बनी इस्राईल में यौमा नदू कुल्लु अनासिर बेमामे, मैं क़यामत के दिन हर फिरके को बुलाऊंगा इमाम के साथ। मैं जिस शख्स का बेटा हूं, मैं अपनी बात करने का आदी हूं। अल्लाह कह रहा है मैं क़यामत के दिन हर फिरके को
इमाम आगे, मानने वाले पीछे। अल्लाह की नजर आगे वाले पर होगी। ये कराची है यार, पहुंच जाना चाहिए। अल्लाह की नजर आगे वाले पर होगी, पीछे वाले पर होगी। अल्लाह ने कहा इनका इमाम तू है, मैं इन्हें नहीं जानता। ये मयार है कराची का, ये मयार है मुनीर भाई कराची का। अल्लाह ने कहा इमाम तू है, ये तेरे पीछे। अब किबला मैं आज पहली तकरीर में ये बात करने पर मजबूर हो गया, क्योंकि चंद चेहरे मेरे सामने ऐसे बैठे और मजबूर कर दिया उनकी बात करना। किबला ये जुमले मुसलमानों की बड़ी किताब बाइबल समझ है। जब रसूल मेराज से वापस आए, अब ये बात याद रखना कि क़यामत के दिन हर फिरके को बुलाया जाएगा इमाम के साथ। अल्लाह की नजर आगे वाले पर होगी, पीछे वालों पर नहीं। आए और ये गुफ्तगू किसकी है? गुफ्तगू है जनाब रसूल की और जनाब बदनी की। तवज्जो कर रहा हूं, आयत ज़हन में रखो जो मैंने पढ़ी कि क़यामत के दिन हर फिरके को बुलाया जाएगा इमाम के साथ। और मुनीर भाई आज पहली तकरीर में अब कराची का मजमा धमाल मार के नाकुल अली की विलायत की मस्ती में तो हमारी आसत देता है। क्या गुफ्तगू है जनाब रसूल की, जनाब बदनी की। गुफ्तगू है दोनों बाप और बेटी की, जनाब सगीरा। क्योंकि ये कुदरत का कानून है कि जब दो मौसूम आपस में गुफ्तगू करें तो वो अनाम को बताते हैं। इसका ये मकसद नहीं होता कि रसूल को पता था, जनाब बदनी ने पता था, पता दोनों को था, लेकिन हमें बताना था, हमें समझाना था। जिस तरह मैं तुम्हें 50 मिनट से समझा रहा हूँ, लेकिन अभी भी तुम्हारी घबराहट दूर नहीं हुई। क्या? अब सुनो, जब रसूल आए मेराज से वापस आए, जनाब सैयदा का पापा आप जो उनके दिन रात बोसा देते हैं, क्यों? तो रसूल ने कहा बेटा आपकी जात से मुझे जन्नत की खुशबू आती है। तवज्जो आई बुलानी, तवज्जो बड़ा अहम जुमला कहीं तकरीर में हमारे यहाँ से कह रहा है, बड़ा अहम जुमला। कहा आपकी जात से जन्नत की खुशबू आती है। तो बीवी ने पूछा पापा ये जुमले कब थे? जब रसूल मेराज से वापस आए। बीवी ने कहा बाबा जन्नत में गए थे। मैंने कहा गुफ्तगू है, अब लुत्फ लोगे तो मजा आएगा ना। गुफ्तगू है बाप और बेटी की। तवज्जो। कहा बाबा जन्नत में गए थे? कहा बेटा गया था। बीवी का बाबा आपने वहां क्या देखा? कहा बेटा अल्लाह एक महल में लेके गया, तो महल का जो दरवाजा था, दरवाजे पे पर्दा लटका हुआ। तो कहा बेटा जब मैंने दरवाजे के ऊपर देखा तो वहां लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अमीरुल मुमिनीन। 50 मिनट तुम अपनी मर्जी में बोलो, अब मेरी मर्जी में बोलो। कहा बेटा कहाँ लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अमीरुल मुमिनीन। अब मैं तवज्जो चाहूंगा अली के शीरों से, तवज्जो। कहा बाबा फिर? तवज्जो। फिर? कहा बेटा फिर जब मैंने पर्दे को देखा, पर्दे को, दरवाजे को नहीं, दरवाजे के आगे पर्दा था, उसको देखा तो उस पर ये बात लिखी। अब मैंने कहा अली का शिया सर उठाए, 50
ये इबारत लिखी थी। कहा पापा कौन सी? कहा ये फबशिर शियत अली अला ताहिर बिलादा। रसूल जब जाना तो अली के शीरों को उनकी ताहिर बिलादत पे मुबारक देना। रसूल जब जाना तो अली के शियों उनकी ताहिर बिलादत मुबारक अब गुफ्तगू है सुनने वाली। अब मेरे बच्चों को भी सुनो और दोस्तों झूमो अली की मोहब्बत की कसम। अब बीबी ने कहा बाबा इसका मकसद क्या है कि जब जाए अली के शियों को उनकी ताहिर बिलादत मुबारक दे। ये वो मजमे से अब्दुल हकीम का बेटा बात करे जिन्होंने अब्दुल हकीम सुना, ताबिर जोगी सुना, समीर अख्तर नदवी सुना, इरफान हैदराबादी सुना। अब जाहिर सी बात है इस मजमे के सामने अगर अब्दुल हकीम का बेटा कोई हल की बात करेगा तो ये मजमा सुन सकेगा? नहीं सुन सकेगा ना, क्योंकि इतना बयान सुन के बैठा है तो हल की बात हमारे अक्सर भी नहीं करेगा। क्या कहा बाबा इसका मकसद क्या? अब देखो राज खुलता कैसे खुलता। अब किबला अक्सर हमारे बच्चों को भी यही बताया जाता है कि बेटा कयामत के दिन बुलाया जाएगा अपनी माँ के नाम से। मैंने कहा मेरे बच्चों तुम्हारे बड़ों में तो बड़े सुने, अब तो मुझे सुनो। क्या कयामत के दिन बुलाया जाएगा बेटा माँ के साथ फलानी के बेटे। मैंने कहा मजमा अब मुनीर भाई अली की विलायत की मस्ती में यूं ना होना तो इस दरवाजे से खैराती नहीं। क्या कयामत में बुलाया जाएगा? वो किबला भी मुस्कुरा रहे। कयामत में बुलाया जाएगा माँ के नाम के साथ फलानी के बेटे। किबला हम पूछते थे बचपन में अपने उस्तादों से भी क्यों माँ के नाम के साथ क्यों? तो कहते थे भाई इसलिए कि जनाब ईसा के बाद बेगरामी नहीं, तो ईसा की इज्जत को बचाने के लिए कयामत में अल्लाह माँ के नाम के साथ बुलाएगा। लेकिन कराची वालों जब हम बड़े हुए और हमें अकल आई, हमने तब सोचा ईसा की तो माँ है, आदम की तो ना माँ है ना बाप है। हमने सोचा ईसा की तो माँ है, आदम की तो ना माँ ना बाप। रसूल जब जाना तो अली के शियों को, अब जो अली का शिया होगा वो झूम के बोलेगा, तो अली के शियों को उनकी ताहिर बिलादत में मुबारक देना। तो बीवी का बात है इसका मकसद था, तो रसूल ने कहा बेटा इसका मकसद ये है कि कयामत के दिन अल्लाह
हर मौमिन को बुलाएगा अपने इमाम के साथ। तवज्जो, अल्लाह क़यामत के दिन हर मौमिन को बुलाएगा इमाम के साथ और क़यामत के दिन आवाज आएगी, फला फला का बेटा, फला फला का बेटा अपने इमाम के पीछे हो जा, फला फला का बेटा अपने इमाम के पीछे हो जा, सारा फला फला का बेटा अपने इमाम के पीछे हो जा। और रसूल ने कहा बकूल जो अली के दुश्मन होंगे उनको अल्लाह बुलाएगा, फलानी फलानी के बेटे, फलानी फलानी के बेटे अपने इमाम के पीछे हो जा। कहा पापा ये फलानी हूँ, कहा बेटा जब उनके बाप का पता ही नहीं होगा। अली के दुश्मन होंगे, अली के दुश्मन होंगे, उनको क़यामत में आवाज आएगी, फलानी फलानी के बेटे अपने इमाम के पीछे हो जा, पीछे। अब यही सबब है तुम्हारा मियाद है कि मौला तुम्हारे यकीनों में इजाफा करे। एक जुमला और सुना माल यासिर का, यही सबब है जब मेरा मौला हसन गया था ना दरबार में, हसन आज मुसलमान ने सुला के लिए बुलाया था, सुला के लिए बुलाया था, इमाम हसन गए सुला के लिए। अब सुन, अब लड़की के बेटे का जुमला, मेरा मौला हसन गया दरबार में, इत्मीनान से बैठा है, इत्मीनान से, तवज्जो, इत्मीनान से बैठा है। एक उठा क्या रसूल ने कहा, फलानी फलानी के बेटे। मैंने कहा 50 मिनट को अपनी नया मर्जी में लगाओ, मेरी मर्जी। क्या बैठा है दरबार में, एक उठा और कहा हसन आज 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 अगर अली होता ना मैं उसको कत्ल कर देता। तवज्जो, बड़ा जुमला तारीफ का कह रहा हूं, तवज्जो तवज्जो तवज्जो, सिर्फ बात कर दिया क्या हसन आज अगर अली होता ना मैं उसको कत्ल करता। मेरा मौला हसन के नाम से बैठा है, ऐसे लगा कि सुनाई बैठा है। एक बेचारा मरम बैठा था हसन के कदमों में, मरम था ना, कब बोला जवाब तो दे, इतना बोल रहा है, मुस्कुरा देता है, इसी जवाब को जिसके पैदा होने पर 6 बंदों में झगड़ा हो गया। अली का दुश्मन कभी नस्ली नहीं हो सकता। नहीं, इसीलिए रसूल ने कहा कि बेटा जो अली के मोमिन होंगे उनको अल्लाह कहेगा फला फला का बेटा अपने इमाम के पीछे होगा। और जो अली के दुश्मन होंगे, ये अली की दुश्मनी में इन बच्चों को बहकाया गया कि क़यामत के दिन को बुलाया जाएगा माँ के नाम के साथ। नहीं, अल्लाह ने कुरान में बताया जो मेरा इमाम है उसके पीछे उसके मानने वाले होंगे। मेरा इमाम आगे होगा, मानने वाले पीछे होंगे, मानने वाले पीछे होंगे।
हैरत लगती है नौजवानों, हैरत लगती है भैया थके तो नहीं है ना, 5 मिनट की जहमत दे सकता हूँ, मुझे तो फिर भी सफर करना है, आप थके तो सही। अक्सर जगहों पे ये कहा जाता है क्योंकि ये चाहता मासूमी का वो मजमा है जो सारी जिंदगी ऐसा मलंग बता सुना जिसने पहली बात तो ये कि ना कभी किसी से कुछ लिया, अतीते में कोई समझौता ही नहीं किया, लोग लड़े झगड़े बेबाबा झगड़े मिले कराची में लोग तो बुजुर्ग बैठे आया उसमें भूत आपने कहा हमारे झगड़े हुए पता नहीं क्या मुझे तो फिर सही के सही अली लाए ज्यादा नहीं पकड़ बंदा अकेला रह जाता है, तन्हा रह जाता है, मैं कहता हूँ डूब के मर जाओ, डूब के मर जाओ, डूब के मर जाओ। आज तुम नौजवानों को गुमराह कर रहा है, भाई अगर अली अली ज्यादा करेगा ना तो तन्हा रह जाएगा, अकेला रह जाएगा, लेकिन डूब के मर जाओ। जो अली अपने शिया को कब्र में अकेला नहीं छोड़ता दुनिया में क्या छोड़ेगा? दुनिया में अकेला छोड़े, खुदा की कसम जिन्होंने दुनिया में सारी जिंदगी अली पढ़ा उनको क्या मकाम हासिल हुआ, क्या मौला ने मर्तबा दिया, क्या इज्जत दी। अरे जिसकी वजह से हमारी यहाँ की इज्जत कयामत में इज्जत उसका नाम लेना बिदअत है। नहीं ये तो इंशाल्लाह अभी 8 तक तकालीफ जारी रहेगी। आज तो पहला दिन था इसलिए बड़े आराम से मैं आपको समझाता आया, कल से ज़हनों को तैयार करके आना, तैयार करके बस आज 6 सफर की रात होगी, ये वो हफ्ता चल रहा है जिस हफ्ते में काफिला दरबार पहुंचा था। मैं नौजवानों मैं ना इंतहा पसंद हूं ना मैं लड़ाई झगड़े वाला बंदा हूं। मैं एक हाथ जोड़कर तमाम लोगों से इल्तिजा करता हूं। मैं कहता हूं आज तुम अली पे लड़ते हो, ज़ैनब की चादर उतारना कोई मजाक था? तारीखों ने लिखा कि जब ये काफिला दरबार पहुंचा सिलसिला ऐसे था, आगे जनाबे फिजा के कांधे पे जनाबे ज़ैनब का सर, जनाबे ज़ैनब के कांधे पर जनाबे उम्मे कुलसूम का सर, जनाबे उम्मे कुलसूम के कांधे पर जनाबे रुकैया का सर, जनाबे रुकैया के कांधे पे अकबर की मां का सर, अकबर की मां के कांधे पे असगर की मां का सर। और तारीखों ने लिखा कि आखिर में जो बीवी थी वो अब्बास की बेवा थी।
50 साल की बहन के एक सवाल ने मुझे कयामत तक रुलाया। किसी का मौला क्या सवाल? जब मेरा काफिला दरबार पहुंचा, जनाब सकीना मेरे पास आई और मेरी बहन ने मेरा दामन पकड़ के बोला, भैया इस शिविर आदमी को बोल थप्पड़ मारे लेकिन ताने ना दे। सुनोगे जुमला? का भैया थप्पड़ मारे ताने ना दे। सैयद सजाद ने गले लगाकर कहा, बेटा कैसे ताने? कहा भैया थप्पड़ भी मारता है। फिर कहता है बुला अपने चचा अब्बास को। हाँ ऐसा करो। दो जुमले सुनो। पहुंचा काफिला इस शिविर में हुसैन का सर ला के रखा यजीद मलून के आगे। यजीद ने हुसैन के सर को देखा और शिविर को देखा, शिविर अब मुझे सच सच बता कि तूने हुसैन को कत्ल कैसे किया। लेकिन ये जुमला पढ़ने से पहले एक जुमला मेरा और सुनो। तारीखों ने लिखा कि उस दरबार में, यजीद के दरबार में एक मिस्र का रावी बैठा था। जब करबला के सारे शहीदों के सर लाके रखे गए ना, इस मिस्र के जो रावी बैठा था, इसने सरों का मुआयना शुरू किया। मुआयना करते करते अब जो अज़ादार होगा ना, वो मातम करके रोएगा तुमने सुन के। मुआयना करते करते इसकी नजर पड़ी अब्बास के सर पे। अब्बास के चेहरे का जो जलाल देखा, अब जुमले भी सुनना, गिरिया भी करना। अब्बास के जैसे सर को देखा ना और जो चेहरे पे जलाल देखा, इस शिविर को बुलाया। शिविर इधर, ये लांती आया। वो रानी कहता है, मैंने शिविर से पूछा, शिविर